Hello students, let's start with the next heterocyclic compound, that is thiophene. And today we are going to discuss methods of preparation as well as properties of thiophene. First of all, about the methods of preparation, we can prepare thiophene from sodium succinate, or we can get it from acetylene. We can also prepare it from normal butane, and the most important method is from 1,4-diketones, which is popularly known as Pal-Knorr synthesis, and which is a common method for preparing furan, pyrrole, and similarly the thiophene as well. First method, we can prepare it by heating sodium succinate with phosphorus trisulfide, and this is the method by which we can prepare it in the lab. Cyclization occurs and we get thiophene. Next method is by heating acetylene with hydrogen sulfide. Sorry, I have wrongly written here hydrogen disulfide. It's hydrogen sulfide. So cyclization occurs again because lone pair of sulfur attacks on the acetylene. Cyclization occurs and we finally get thiophene. Next method, we can prepare it by heating normal butane with sulfur, and again cyclization results in formation of thiophene. So very simple methods of preparation of thiophene we are discussing. Now this is the Pal-Knorr synthesis. For pyrrole and furan also we have discussed this method, and heating 1,4-diketones, for example hexane 2,5-dione, either with phosphorus trisulfide or with phosphorus pentasulfide, it gives us 2,5-dimethyl thiophene. The mechanism we have discussed in general, and I would ask you to try yourself writing the mechanism of Pal-Knorr synthesis of thiophene as well. Okay, so this was about methods of preparation of thiophene. Next, we are going to start with the properties of thiophene. Most common property of thiophene, like other 5-membered heterocyclic compounds which are aromatic in nature, is the electrophilic substitution reaction. Now, we know that when we had discussed the aromatic character of thiophene, so I told you that thiophene is the most stable of the 3 5-membered heterocyclic compounds which we are discussing, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 125 किलो जूल पर मोल. पायरोल और फ्यूरेन की मालूम है तुम्हें, ठीक है, और बेंजीन की भी. तो इफ़ वी कंपेयर, तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ थायोफीन इज़ हाईएस्ट ऑफ द 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इट्स स्टिल लेस देन दैट ऑफ द बेंजीन. बेंजीन की 151 होती है और थायोफीन की 125. तो इस बेसिस पे हम क्या सोच सकते हैं कि जो थायोफीन है, ऑफ कोर्स दैट इज़ लेस स्टेबल देन बेंजीन, सो इट्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, but it is more stable than pyrrole and furan, and so it's less reactive than pyrrole and furan. अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पायरोल एंड फ्यूरेन, इसका मतलब थायोफीन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कम रिएक्टिव है, ठीक है. और ये एविडेंट है जब हम इसकी आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली जो हमें कंडीशंस यूज़ करनी पड़ रही हैं, हीटिंग की, प्रेशर की, कैटलिस्ट यूज़ करने की, या हम एसिड कंडीशन, एसिडिक कंडीशंस यूज़ करें या ना करें, तो वो हमें बताता है कि थायोफीन में कंपैरेटिवली जो कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, दे आर क्लोज टू दोज यूज्ड इन बेंजीन, और पायरोल और फ्यूरेन के मुकाबले में कंपैरेटिवली हम नॉर्मल रीजेंट्स यूज़ कर पाते हैं, ठीक है. तो let's now look at various electrophilic substitution reactions of thiophene. As you can see कि this thiophene is shows electrophilic substitution reactions
लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। हालांकि हैलोजिनेशन रिएक्शंस इसमें भी कंपैरेटिवली हमें डिफरेंट कंडीशंस में करवानी पड़ती हैं। अब उसका रीज़न क्या रहता है कि जो थायोफिन है कंपैरेटिवली वो स्टेबल है ऑफ कोर्स, और इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। कम से हमारा मतलब क्या है कि दैट इज़ ओनली कंपैरेटिव, कि बेंजीन के कंपैरिजन में या 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी कैसे रहती है। अब जैसे इन रिएक्शंस में यू कैन सी कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में वी आर यूजिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जो कि हम पायरोल या फ्यूरन में सोच भी नहीं सकते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो रिंग्स तो रप्चर हो जाती थी। अब क्योंकि ये रिंग स्टेबल है तो नाइट्रेशन कैन बी डन विद इवन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, राइट। ऐसे ही सल्फोनेशन में वी कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड, दो वी आर यूजिंग हेयर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन H2SO4 यूज़ कर पा रहे हैं और इसकी सल्फोनेशन 2 पोजीशन पे एज एक्सपेक्टेड हो रही है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ बीइंग डन से विद एसिटिक एनहाइड्राइड और 2 पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। ऐसे ही इसमें हम बेंजोआइलेशन भी करा सकते हैं थायोफिन में, और 2 पोजीशन पे बेंजोआइल ग्रुप लग रहा है। इसके अलावा जो बाकी की जो रिएक्शंस मैंने शो की हैं वो क्या दिखाती हैं कि कंपैरेटिवली बेंजीन के कंपैरिजन में ये अभी भी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से कम है। एज आई हैव टोल्ड यू, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 125 किलो जूल पर मोल थायोफिन की, और बेंजीन की होती है 151 किलो जूल पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी थायोफिन की कम है, मतलब स्टेबिलिटी कम है, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो बेंजीन के कंपैरिजन में थायोफिन की रिएक्टिविटी अभी भी ज़्यादा है। इसलिए जो ये लास्ट की 3 रिएक्शन है, क्लोरोमिथाइलेशन या फॉर्माइलेशन या क्लोरोमर्क्यूराइजेशन, ये सब रिएक्शन शो करती हैं कि थायोफिन इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन, और 2 पोजीशन पे CH2Cl ग्रुप या CHO ग्रुप या HgCl ग्रुप ये लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थायोफिन में भी 2 पोजीशन पे हो रही हैं, पायरोल और फ्यूरिन में भी 2 पोजीशन पे ही होती हैं। 2 पोजीशन मीन्स अल्फा पोजीशन, पहली बात ये। और दूसरी बात कि कंडीशंस जो हैं थायोफिन में हम एसिडिक कंडीशंस भी यूज़ कर पा रहे हैं, नाइट्रेशन के लिए फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन के लिए H2SO4। लेकिन तुमने देखा कि फ्यूरिन में या पायरोल में हमने सल्फोनेशन के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडीन यूज़ किया था, नेवर यूज्ड H2SO4, क्योंकि वहाँ रप्चर हो जाती थी, है ना, या फिर पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन कंडीशन जो हम थायोफिन में देखते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूरिन एंड पायरोल। नेक्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मतलब जैसा कि बेंजीन में करते हैं उन कंडीशंस में नहीं होती है। हेयर ऑल्सो वी सी कि अगर हमें क्लोरीनेशन करनी है तो अगर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं तो अभी भी 2,5-डाइक्लोरो थायोफिन मिलती है। ऐसे ही अगर ब्रोमिनेशन करते हैं सिंपल ब्रोमीन से तो 2,5-डाइब्रोमो थायोफिन मिलती है। सो इफ़ वी वांट टू गेट ओनली 2-क्लोरो, मतलब मल्टीपल हेलोजिनेशन, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन ना हो, तो हमें यूज़ करना पड़ रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। इसी तरह अगर ब्रोमिनेशन एक ही करवाना चाह रहे हैं हम, ओनली 2 ब्रोमोथायोफिन वी वांट टू गेट, देन वी यूज़ N ब्रोमो सक्सीनिमाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर तुम्हें थायोफिन से 2 ब्रोमोथायोफिन बनाना है तो तुम्हें क्या रिएक्टेंट या रीजेंट यूज़ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज़ N ब्रोमो सक्सीनिमाइड। और अगर 2,5-डाइब्रोमो बनाना है देन यू कैन यूज़ सिंपल ब्रोमीन ऑल्सो, ठीक है।
इसी तरह अगर हम थायोफीन की आयोडीनेशन करते हैं तो सिंपल आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हमें 2-आयोडोथायोफीन मिल जाता है। तो क्या कंडीशंस यूज़ करनी है, क्या रीजेंट यूज़ करना है हैलोजिनेशन के लिए, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम सिंपल क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो हमें 2,5 डाई हैलोजिनेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, और अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ 2-क्लोरोथायोफीन बनाना है तो SO2Cl2 से रिएक्शन करो। इसी तरह 2-ब्रोमोथायोफीन बनाना है तो N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड से रिएक्शन करो। राइट, नेक्स्ट इज कि वी कैन रिएक्ट थायोफीन विद N-ब्यूटाइल लिथियम, और यहाँ पे क्या होता है N-ब्यूटाइल लिथियम में ब्यूटाइल ग्रुप इज़ डेल्टा नेगेटिव, लिथियम इज़ डेल्टा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ लिथियम, ठीक है। तो लिथियम विल अटैक एट द 2 पोजीशन ऑफ थायोफीन और हमें लिथिएटेड थायोफीन मिल जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है फर्दर कि व्हेन वी ट्रीट इट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन विद डाइल्यूट HCl, मतलब हाइड्रोलिसिस भी साथ में करा दें, तो पहले COOLI ग्रुप लगेगा और फिर वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा इनटू COOH, तो हमें थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं प्रेपरेशन के ऑफ थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कि पहले लिथिएटेड थायोफीन बनाओ, फिर उसकी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उससे हमें मिल जाता है थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। Next is reduction reaction of thiophene. Thiophene undergoes reduction reactions, and under different conditions we get different products. See, in first reaction I have shown Birch reduction, means reduction with sodium and liquid ammonia. Only one double bond is reduced, so either we get 2,3-dihydrothiophene or we get 2,5-dihydrothiophene, means only one double bond is reduced. But if we use strong reducing agent like say निकल हाइड्रोजन, कैटालिटिक रिडक्शन अगर हम कराते हैं थायोफीन की, तो हमें टेट्राहाइड्रोथायोफीन मिल जाती है, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं। और फर्दर व्हाट वी सी कि अगर हम इसकी रिडक्शन कराते हैं विद प्लेडियम हाइड्रोजन वी गेट टेट्राहाइड्रोथायोफीन, और अगर हम रिडक्शन कराते हैं विद रेने निकल एंड हाइड्रोजन तो कंप्लीट रिडक्शन, रिंग रप्चर, एंड वी गेट नॉर्मल ब्यूटेन इन दैट केस, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डीसल्फराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सल्फर ही निकल गई, रिंग ही टूट गई और हमें नॉर्मल ब्यूटेन मिल गई इस मेथड से। तो रिडक्शन रिएक्शंस भी डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट्स देती हैं, वी कैन सी दैट। इस थायोफीन रिंग की ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, एंड सो द लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन वी कैन सी इज दैट इज साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अगर थायोफीन की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बीन्स से, अब कार्बीन्स का सोर्स क्या है? कार्बीन का सोर्स है CH2N2, या कार्बीन का सोर्स है N2CH2COO C2H5। तो अगर हम इस तरह से कार्बीन से रिएक्शन कराते हैं थायोफीन की, ऑफ कोर्स ऑन हीटिंग, तो यू कैन सी इसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाती है और हमें पाईसाइक्लो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं थायोफीन के। सो दैट वाज अबाउट different reactions of thiophene. Of course the main reactions are electrophilic substitution reactions, लेकिन उसके अलावा इसमें reduction reaction या cycloaddition reactions भी हो सकती हैं। So go through these methods of preparation and properties of thiophene. Thank you.